السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کا زبردست اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 12,881 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 334 لوگوں کی فوت ہونے کی بھی اطلاعات ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح اپڈیٹ کے مطابق اب ملک میں کل مریضوں کی تعداد 3,66,946 ہو گئی ہے، جس میں 12,237 لوگ وائرس کے سبب فوت بھی ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 7,390 مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ اب اس بیماری سے جنگ لڑ کر ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد 1,94,325 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ایسی افواہیں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن دوبارہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے چیف منسٹروں کے ساتھ ای میٹنگ میں کہا کہ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران عائد کردہ تحدیدات میں کٹوتی کے بعد سے معاشی کارکردگی میں سدھار کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جاریہ ان لاک 1 کے بعد اب 2 کے تعلق سے غور کرنے اور انفیکشن کو گھٹانے کے طریقے بھی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کووڈ-19 کا چند بڑی ریاستوں اور بڑے شہروں میں پھیلاؤ زیادہ ہے اور چیف منسٹروں سے اپیل کی کہ اپنی اپنی ریاست کی موجودہ ٹیسٹنگ کی صلاحیت کا بھرپور استعمال کیا جائے، نیز ہیلتھ انفراسٹرکچر کو وسعت دینے پر کام بھی کیا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلوان وادی میں ہندوستان اور چین کے درمیان ہوئی پرتشدد جھڑپ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ کورونا سے نمٹنے 15 ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کسی کو بھی الجھن یا خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کسی اشتعال انگیزی پر مناسب جواب دینے کے موقف میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان امن چاہتا ہے لیکن جواب دینا بھی اچھے سے جانتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ ہندوستان اپنی سالمیت سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہمارے فوجی مارتے مارتے شہید ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورا ملک شہید جوانوں کے افراد خاندان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ملک کو اپنی قربانی پیش کی ہے۔ ہندوستان نے گلوان وادی میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ خونریز تصادم میں 20 ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سرحد پر فوج اور فضائیہ کو سخت چوکسی کی حالت میں رکھا گیا ہے۔ چین کے ساتھ 3,500 کلومیٹر طویل سرحد پر فوج اور فضائیہ کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سرحد پر متعین فوجیوں کو چین کے فوجیوں کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ابھی تک جو ہدایتیں جاری کی گئی تھی اس میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے۔ گلوان وادی میں کل ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان خونریز تصادم کے خلاف جس میں 20 ہندوستانی سپاہی ہلاک ہو گئے، ملک کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ دہلی پولیس نے چند سابق فوجیوں جو احتجاج کے لیے دہلی میں واقع چینی سفارتخانے کے روبرو جمع ہو گئے تھے، 3 مورتی کے قریب پولیس نے سودیشی جاگرن منچ کے 10 ارکان کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پولیس دہلی دیپک یادو نے بتایا کہ 7-8 سابق فوجی شہید ویلفیئر آرگنائزیشن کے بینر تلے چینی سفارتخانے کے قریب جمع ہو کر مظاہرہ کر رہے تھے، جنہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا گیا۔ اسی دوران گجرات کے مختلف مقامات پر چینی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ احمد آباد، بڑوڑا اور سورت میں چینی پرچم اور اس کے صدر ژی جن پنگ کی تصاویر کو نظر آتش کیا گیا۔ احتجاجی وزیر اعظم نریندر مودی سے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وزارت ٹیلی کام نے BSNL، MTNL اور دیگر خانگی ٹیلی کام کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام چینی آلات کا استعمال روک دیں۔ وزارت نے BSNL کی جانب سے اپ گریڈیشن کے دوران بھی چینی آلات کو استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ماضی میں اپ گریڈیشن کے دوران چینی آلات کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ اقدام سرحد پر چینی فوج کے ساتھ تصادم میں ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسی دوران کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے چینی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے نیوز 18 کے بدنام زمانہ اینکر امیش دیوگن کے خلاف ملک بھر میں FIR درج کرائی جا رہی ہے۔ اس بیچ مسلمانوں کے ایک زبان ہو کر آواز بلند کرنے اور دیگر برادران وطن کے شدید رد عمل کو دیکھتے ہوئے امیش دیوگن نے اپنی حرکت پر پہلے ٹویٹر پر پھر نیوز 18 کے پروگرام میں معافی مانگ لی ہے۔ تاہم ایک بڑا طبقہ ان کے اس معافی مانگنے کو ڈھونگ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ معروف صحافی اجیت انجم نے ٹویٹر پر ہی ان کے معافی مانگنے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے اندر ایک مذہب کے تعلق سے زہر بھرا ہوا ہے۔ آپ جان بوجھ کر ہر روز زہر پھیلاتے ہو۔ معافی تو وہ مانگیں جس سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہو، جس کی فطرت ہی ایسی ہو، اس کی معافی کا کیا مطلب؟ چین کے ساتھ سرحد پر جاری تنازع اور جھڑپوں نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب چینی سامان کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے تاجروں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا ٹریڈرز کنفیڈریشن نے منتخبہ چینی سامان کا امپورٹ بند کرنے اور ملک میں بھی اس کا پوری طرح سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
साथ ही कन्फेडरेशन ने आमिर खान, दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ से मुतालबा किया है कि वो भी चीनी सामान की तशहीर बंद करें और इस मुश्किल घड़ी में चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी तरफ से यह कदम उठाएं। फिल्म अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकशी का मामला तोल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मुकामी वकील ने सुपरस्टार सलमान खान, करण जौहर और एकता कपूर समेत 8 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। इन अफराद में संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, साजिद नडियाडवाला, भूषण कुमार और दिनेश बेजान भी शामिल हैं। इन सभी पर सुशांत को खुदकशी पर मजबूर करने का इल्जाम आयद किया गया है। मुकामी वकील सुधीर ओझा ने CJM की अदालत में यह मामला पेश किया है, जहां से इन्हें 3 जुलाई की सुनवाई की तारीख भी मिल गई है। इस मामले में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली अदाकारा कंगना रनावत को गवाह बनाया गया है। इन सभी अफराद पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि साजिश के तहत ये लोग सुशांत की फिल्में रिलीज नहीं होने दे रहे थे और कई मरतबा उन्होंने सुशांत से फिल्में छीनी भी हैं। लद्दाख में बरसों से मुख्तलिफ पार्टियों के सियासतदान और खुद बीजेपी के कुछ लीडरान मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तान चीन के दरमियान तनाज़े के बढ़ने का इंतबाह देते आ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत मशरकी सरहद पर सब कुछ ठीक है का राग लगाती रही। दी टेलीग्राफ के मुताबिक चीन से मुतसिल लद्दाख के इलाकों में रहने वाले बाशिंदे कई बरस से खौफ के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमसाया मुल्क के फौजियों की शरंगेजियों के सबब अपनी कीमती जमीन खो बैठे हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से यहाँ मामलात बिगड़ रहे थे। हुक्काम ने 15 दिन कबल सरहद से मुतसिल देहात में बसने वाले हजारों अफराद के मोबाइल फोन नेटवर्क बंद कर दिए थे। लद्दाख में चीनी फौजियों के जरिए मुल्क के 20 फौजियों की शहादत के बाद अब रिवायत के मुताबिक मरकजी हुकूमत बेदार हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 जून को कुल जमाती मीटिंग तलब की है। दूसरी जानिब कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने जारी अपने बयान में कहा है कि चीन के खिलाफ अपोजिशन कांग्रेस हुकूमत और फौज के साथ है, लेकिन हमारा PM मोदी से सवाल है कि आखिर चीन ने इतनी बड़ी हिमाकत कैसे की। उन्होंने कहा कि PM मोदी से यह भी सवाल है कि चीन ने आखिर हिंदुस्तान की जमीन पर कैसे कब्जा किया। उन्होंने कहा कि हम फौज और हुकूमत के साथ हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पूरा मुल्क तैयार है। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी PM से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि आखिर अब PM मोदी खामोश क्यों हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 फौजी शहीद हुए, इन्हें इनके अहले खाना से छीना गया है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, PM जी चुप क्यों हैं। मेरे घर में 5 लोग कई रोज से भूखे हैं, अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो वो भूख से ही मर जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से हम भूखे मर रहे हैं। राशन की किट मुझे दो और इसके बदले में अपने आप को आपके हवाले करती हूँ। आप जो चाहे मेरे साथ कर लो। ये दिल दहला देने वाले और बेबसी से भरे अल्फाज गुज़िश्ता रोज एक ऐसी लड़की के मुंह से निकले जो राशन मांगने के लिए कतार में खड़ी थी। राशन तकसीम करने वालों को भी इस लड़की की इतनी बुरी हालत का अंदाजा नहीं था। वो लोग ये अल्फाज सुनकर बहुत रंजीदा हुए और नम आंखों से उन्होंने इस लड़की को पूरा राशन दिया। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में अभी भी कई इलाके बंद हैं और जो खुल भी गए हैं वहां जिंदगी मामूल पर आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। दुकानें तो खुल गई मगर तकदीर के दरवाजे पूरी तरह नहीं खुल पाए। लोगों ने कहा कि इस मुसीबत से निकलने में कितना वक्त लगेगा ये कहा नहीं जा सकता। बहुत से लोग भूखमरी का शिकार हैं और सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए है जो अपनी इज्जत के खातिर हाथ नहीं फैला रहे हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में गुज़िश्ता रोज एक ऐसा दर्दनाक और इंसानियत को झंझोड़ देने वाला वाक़या पेश आया। दरअसल वहां कुछ लोग राशन तकसीम करने पहुंचे। इसी बीच वहां एक भूख से निढाल लड़की भी पहुंची। जब इसने बताया कि मेरे घर के 5 लोग कई रोज से भूखे हैं और वो राशन के बदले अपना जिस्म भी देने को तैयार है, तो ये सुनकर लोग सख्ते में आ गए और फौरन इस लड़की को राशन दिया गया। इस पूरे मामले की तफसील बताते हुए दिल्ली की बुजुर्ग शख्सियत जफर जंग ने बताया कि गुज़िश्ता रोज मेरे एक दोस्त के साथ यह मामला पेश आया। इस लड़की की बेबसी देखकर इनकी आंखें नम हो गई और इसको पूरा राशन दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरे मुल्क के लिए शर्म की बात है कि गैरतमंद लोग खाने के बदले अपनी इज्जत देने पर मजबूर हो रहे हैं। अफसोस की बात है कि लोग अभी भी फाकाकशी कर रहे हैं और इज्जत की खातिर किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में तिब्बी अमले का किरदार सबसे अहम है। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम मुत्तहिद होकर पूरी लगन के साथ काम करें और कोरोना को काबू करने की कोशिश जारी रखें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ की गई गुस्ताखी के खिलाफ अब सदर जमातुल उलमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना सैयद अरशद मदनी भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने जहां एक तरफ हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि गुस्ताख एंकर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, वहीं दूसरी तरफ ऐलान किया है कि वो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक न्यूज एंकर के जरिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में हद तक आमेज रवैया अपनाने के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर व नाजिम नज़वतुल उलमा मौलाना सैयद राबिया हुसैन नदवी ने कहा कि
अफसोस की बात है कि मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं समझ आता है। ऐसी शख्सियत जिसने मुल्क के लोगों में मोहब्बत व खैरख्वाही का जज्बा पैदा करने में अपनी ज़िंदगी गंवा दी है, इसके मुताबिक ऐसी घटिया बात कहना मुल्क व मुल्क के लोगों के लिए ख़तरनाक है। मौलाना नदवी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की ऐसी तस्वीर पेश की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इनसे मुल्क के हर तबका मोहब्बत करता है, गैर मुस्लिम तबका भी इनके यहाँ जाने को अच्छा तस्वुर करता है। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कोई ऐसी घटिया बात कैसे कह सकता है? इस हरकत की हर तरह से मजम्मत होनी चाहिए। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,919 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुमलिकत में एक दिन में अब तक कोरोना के ये सबसे ज़्यादा तशखीस शुदा केसेस हैं। सऊदी वजारत सेहत ने इत्तला दी है कि अब मुमलिकत में कोरोना वायरस के कुल केसों की तादाद 1,41,234 हो गई है, जबकि कोविड-19 का शिकार मजीद 39 मरीज वफात पा गए हैं, जिसके बाद मरने वाले मरीजों की तादाद 1,051 हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में हुक्काम ने ऐलान किया है कि अबू धाबी में रिहाइश पजीर अफराद अब बगैर परमिट के शहर से बाहर जा सकेंगे। इमारत की न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अबू धाबी में रहने वाले अफराद शहर से बाहर तो परमिट के बगैर जा सकेंगे, लेकिन शहर में दाखिल होने के लिए पुलिस की जारी करदा एंट्री परमिट की जरूरत फिर भी होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह कर दिया कि रियासती हुकूमत और तेलंगाना अवाम चीन के साथ मौजूदा बहरान के मौके पर मरकजी हुकूमत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, पूरे मुल्क को एक होकर खड़ा होने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने हिंदुस्तान और चीनी अफवाज के दरमियान सरहद पर झड़प के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चाहे चीन हो या कोई और मुल्क, अगर वो हिंदुस्तान की सालिमियत में कोई मुदाखलत करेगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल पर किसी को सियासत करने की जरूरत नहीं है, ये वक्त हर शख्स को मुत्तहिद होकर एक आवाज़ में बात करना चाहिए। लद्दाख में चीनी फौज के साथ झड़प में शहीद तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रसूमात सूर्यापेट के केसाराम गाँव में जुमेरात की सुबह अदा की गई। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बताया कि कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर फौज और हुकूमत की जानिब से कोविड-19 कवायद के मुताबिक अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि आर्मी मेजर्स और आला ओहदेदार आखिरी रसूमात में शिरकत किए। लॉकडाउन के दौरान शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से शहरियों पर जुल्म व ज्यादती के खिलाफ दाखिल की गई मुफाद आमा की 2 दरख्वास्तों पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज पुलिस के रवैये के खिलाफ शदीद बरहमी जाहिर की और पुलिस कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से अदालत में दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 समाजी कारकुन शीला सारा मैथ्यूज और एसक्यू मकसूद ने मुफाद आमा के तहत 2 दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिसमें लॉकडाउन पर अमलावरी के नाम पर अवाम पर जुल्म व ज्यादती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सैन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आज मुफाद आमा की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान पुलिस कमिश्नर की जानिब से दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे पर इंतहाई ताजुब और अदम इत्मीनान का इजहार किया और हलफनामे में फराहम की गई तफसीलात पर हैरत का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर ने अपने जवाबी हलफनामे में फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में मकानात के बाहर पार्क की हुई गाड़ियों को पुलिस की जानिब से नुकसान पहुंचाने पर अदालत को ये बताया कि कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए पुलिस ने मोटरसाइकिलों की तलाशी ली और लाठियों का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस ने इस जवाब पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत पेश आई, लिहाजा इस सिलसिले में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में तफसीली रिपोर्ट अदालत को पेश की जाए। हज हाउस की इमारत में वक्फ बोर्ड के एक मुलाजिम में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इमारत में वाक़े अक़लियती बहबूद के दफातर में हलचल पैदा हो चुकी है। वक्फ बोर्ड के एक अटेंडर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसे इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि इमारत में काम करने वाले बाज़ दीगर मुलाजमीन की तबीयत भी ख़राब है और इनमें कोरोना की इब्तदाई अलामत देखी जा रही है। इन मुलाजमीन को घरों तक महदूद रहने की हिदायत दी गई है। अक़लियती बहबूद के दफातर पर मुश्तमिल हज हाउस की इमारत में कोरोना के दाखिले ने न सिर्फ ओहदेदारों और मुलाजमीन बल्कि वहाँ मुख्तलिफ कामों से जाने वाले विजिटर्स में खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। शहर में किराएदारों को किराए के लिए मालिकीन जायदाद की जानिब से परेशान किए जाने के बाद अब कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर इन्हें फौरी मकान खाली करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रियासती हुकूमत के इन अहकाम के बाद अब शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में किराएदार और मालिकीन जायदाद के दरमियान नए तनाज़ात का आगाज़ होने लगा है। शहर के कई इलाकों से इस तरह की शिकायत मौसूल होने लगी है। मालिकीन का कहना है कि मकान में कोरोना मरीज की मौजूदगी दूसरों के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन कोरोना वायरस के मुतासरा किराएदारों का कहना है कि वो घरेलू क्वारंटाइन में रहने को तरजीह देते हुए तमाम एहतियात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मालिकीन जायदाद इन्हें हरासा कर रहे हैं। बताया जाता है कि अत्तापुर के इलाके में किराएदार और मालिकीन जायदाद के दरमियान कोरोना वायरस के मरीज की मौजूदगी के सबब तनाज़ा पैदा हुआ। इसी तरह के कई एक वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। तेलंगाना में चाचुम्बे को
269 नए मुस्बित केसेस सामने आए हैं। इस तरह से केसेस की जुमला तादाद 5,675 को पहुंच गई है। आज एक मरीज के फौत होने के साथ मरने वालों की जुमला तादाद 152 हो गई। 269 नए केसेस में से ग्रेटर हैदराबाद के 214 मामला शामिल हैं।